नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम B.Ed फर्स्ट सेम फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, we will discuss about session topic सर्व शिक्षा अभियान introduction. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. Let's see in English. सर्व शिक्षा अभियान was started by Atal Bihari Vajpayee in 2001. India is one of the largest education systems in the world. Gopal Krishna Gokhale first posed in the Central Assembly about compulsory primary education in 1910. In 1920, Article 45 of the new Indian Constitution called for free and compulsory education to all children up to 1950. As long as there is a single citizen of the country, the floor of democracy is far away. This statement is of Mr. Maulana Azad, who was called Mahatma Gandhi, Emperor of Elam, and who as the first educationist of India laid the foundation of education policy in independent India. Our former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee carried forward this effort of Maulana Azad to burn the flame of door-to-door education by launching Sarv Shiksha Abhiyan program throughout India. Sarv Shiksha means education for all, providing education to all children equally, rising above social, religious, cultural, economic, etc. all education. All the states and union territories are covered under this campaign, and an estimate 19.4 crore children from under 1,203 lakh habitations in the country. Sarv Shiksha Abhiyan, one of the important program of education sector of India. The objective of the program is to ensure universal access to education up to the primary level and to eliminate the gender gap. The inspiration for starting this program came from the District Primary Education Program DPEP, started in the year 1993-94. Under it, 18 states were included. Seeing its immediate success, the central government inaugurated an inclusive and integrated program, Child Sarv Shiksha Abhiyan, called Sarv Shiksha Abhiyan, covering all the states. Under this, the goal of free and compulsory education from class 1 to 8 was set for all children, while ensuring the universality of elementary education. Class
1st to 8. In this, it was emphasized that for this compulsory education, the school should be near the house of the children, and the children should not leave the school for 14 years. Sarv Shiksha Abhiyan is a major program related to universalization of primary education. Some of the supporting programs related to universalization of elementary education are Operation Blackboard, Minimum Education Level Mid-Day Meal Scheme, Nutritional Assistant Program, District Primary Education Program, Kasturba Gandhi Girls School Primary Education Fund. Sarv Shiksha Abhiyan is called known as Education for All. Under this campaign, the slogan of Sabse Big has been given. This session prepared by 2.0 digital version ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी में इस टॉपिक को, सेशन को। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो सर्व शिक्षा अभियान प्रस्तावना इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000-2001 में की गई। भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। सर्वप्रथम 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रस्ताव रखा। कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में आ जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रस्ताव रखा था। कब? 1910 में। 1950 में नए संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 1960 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। जब तक देश का एक भी नागरिक अनपढ़ है तब तक लोकतंत्र की मंजिल दूर होगी। यह कथन श्री मौलाना आज़ाद का है, जिन्हें महात्मा गांधी इल्म का बादशाह कहते थे। अब ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी किसे इल्म का बादशाह कहते थे? मौलाना आज़ाद, जिन्हें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में आज़ाद भारत में शिक्षा नीति की नींव रखी। घर घर शिक्षा की जोत जलाने के मौलाना आज़ाद के इसी प्रयास को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे भारतवर्ष में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कर आगे बढ़ाया। सर्व शिक्षा का अर्थ है सबके लिए शिक्षा। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि भेदभाव से ऊपर उठकर समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही सर्व शिक्षा अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं तथा देश की 1203 लाख बस्तियों में अनुमानित 19.4 करोड़ बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत के शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और जेंडर संबंधी अंतर को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम को आरंभ करने की प्रेरणा 1993-94 1993-94 में शुरू की गई जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP से मिली। ये भी कई बार कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंतर्गत 18 राज्यों को सम्मिलित किया गया था। इसकी आंशिक सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसमें शामिल करते हुए सर्व शिक्षा अभियान नाम के समावेशी और एकीकृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करते हुए सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तय किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो और 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल न छोड़ें। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है।
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से संबंधित कुछ सहायक कार्यक्रम हैं: ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष आदि। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत जब पढ़े सब पढ़े का नारा दिया गया। ठीक है, तो ये जो सेशन आज का वो 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है। आप यूं ही आगे से आगे वीडियो को देखते रहें, जिससे जो बीएड प्रोग्राम है फर्स्ट सेम उसका सेशन कंप्लीट होता रहे, प्रोग्राम कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।